topic is outliers. Outliers in statistics or maths are defined as those data points which are significantly different from the rest of the data. ठीक है, यानी अगर आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है उसमें सारी वैल्यूज जो हैं अप्रॉक्सीमेटली दे आर लाइंग क्लोज टू ईच अदर एंड दे हैव वेरी स्मॉल डिफरेंसेस, but they have one or more than one values which are very different from the rest of the data, and they are lying at distance from the rest of the data. Now these outliers, they may be very small values, small as compared to the other data points, or they may be extremely large values as compared to other data points, and that's why they are supposed to be lying at distance from the rest of the data. And now why they are known as outliers? Because they lie outside the other values, that's why they are known as outliers. Now outliers, why they are important? Sometimes outliers, we have to identify the outliers and we have to omit the outliers, or we have to retain the outliers depending on the reason why they appear in the data. Now if the outliers appear in the data as a result of experimental error or human error during performing the experiment or during recording some information, then they needed to be omitted from the data. Why they are needed to be omitted from the data? Because they will change the conclusion drawn from the data. कि वो पूरी स्टेटिस्टिक्स को ही चेंज कर देंगे, तो इस वजह से जो इस डेटा जो इस पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जा रहा है तो उसका जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा, द रिजल्ट विल बी अफेक्टेड. दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू ओमिट द outliers. But if the reason of outliers is not the human error or experimental error, then they will be retained in the data, because if they are lying in the data because of some genuine reason, then they will give new insight of data and they must be included in the research. Now another characteristic related to outlier is आउटलायर्स आर इजीली डिटेक्टेबल फ्रॉम ग्राफ्स एंड टेबल पॉइंट्स. टेबल पॉइंट्स से तो आपको एकदम अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि वैल्यू एकदम से बाकी डेटा से डिफरेंट होती है. ग्राफ से आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकियों से? इफ़ फॉर एग्जांपल यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, यानी बाकी डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, बट सम ऑफ द पॉइंट्स आर लाइंग at a distance from that straight line, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि these are outliers. So you can easily detect the outliers from the graph as well as from the table points. Now we will take a very simple example of outliers and how we identify the outliers and how we will calculate the outliers. We will find out the outliers. Example is you have to record the temperature of 12 different objects in a room. रूम में 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, आपने उन सब ऑब्जेक्ट्स का क्या किया जी? यू हैव टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ दोज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड यू गॉट दिस टाइप ऑफ डेटा. You can see that the whole data, the values are close to each other, but this is unexpectedly very high. So this is different from the rest of the data, so this will be outlier. And now you have identified the outlier. Now you have to decide whether you will have to omit the outlier or you will have to retain the outlier in the data. So for that purpose what will you do? You will, and this is indicating the temperature of the oven. oven का temperature जो है वो unexpectedly high है, बाकी चीज़ों का जो है वो इस range में आता है temperature. This is example. ठीक है. Now what will you do? What will be the first step for the identification and finding out the outliers? You will arrange the data in ascending order. ये आपके पास random है 71, 70, 73. तो first step क्या होगा? You will have to arrange the data in ascending order. तो आपने लो वैल्यू सबसे पहले लिख ली और आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है वो आपने बिल्कुल लास्ट में लिख ली है. नाउ यू विल काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4. या पूरा काउंट करेंगे. यू आर हैविंग अ सेट ऑफ 12 डेटा पॉइंट्स. आपके पास डेटा पॉइंट्स जो हैं वो कितने हैं? देर 12 डेटा पॉइंट्स. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा. और मीडियम में चूँकि आपके पास इवन नंबर डेटा है तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक द टू मिडल वैल्यूज़ एंड यू विल टेक द एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज़. अगर आपके पास ये ऑड नंबर डेटा होता तो आप क्या करते? आप दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसको पिक कर लेते, वो उसका मीडियन होता. बट सिंस यू आर हैविंग इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यू विल सिलेक्ट द टू मिडल नंबर्स. हियर द टू मिडल नंबर्स आर 70 and 71. कैसे ये मिडल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. डेटा पॉइंट्स above and below and data points below above, they are
इक्वल इन नंबर, तो ये आपके मिडल नंबर्स बन रहे हैं. सो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक द एवरेज ऑफ दीज टू बाय adding 70 and 71 and dividing them by 2, you are getting 70.5. That is the median of which are the things which will be affected, which are the parameters or factors which will be affected by outlier, presence of outliers. So mean will be affected. अभी अभी आपने एग्जांपल देखी है कि mean of the data is highly affected by the presence of outliers. Or secondly, standard deviation will also be affected. In the formula of standard deviation there is also present mean. जब आप mean की गलत वैल्यू पुट करेंगे तो obviously standard deviation will also be affected. But median is not affected. median क्यों नहीं affect होता? For example, आपके पास ये data set है which consist of these data points 10, 20, 30, 50, 80, 90 and 300. तो आपने डेटा का जस्ट मिड लेना है और डेटा की मिड यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, 50 आ रही है. तो इस डेटा सेट में चाहे यहाँ पे 300 है या यहाँ पे अगर 70 लाया करता तो मीडियन तो इसका 50 ही रहना था ना. सो द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर डज नॉट इफेक्ट द मीडियन, इट विल इफेक्ट ओनली मीन. एंड कितना है 70.5. और इस मीडियन ऑफ डेटा को हम इंडिकेट करेंगे. इट इज़ शोन एज Q2 क्वार्टाइल 2 से इसको इंडिकेट किया जाता है ना. वाई इट इज़ शोन एज Q2? इसका रीज़न आप ऐसे देख सकते हैं. Median of the data is shown as Q2 because it is higher than Q1 and lower than Q3. कुछ डेटा पॉइंट्स Q2 से कुछ डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज इससे लो हैं और कुछ डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज इससे हाई हैं. तो क्या आपके पास हैं जी क्वार्टाइल्स. नाउ व्हाट आर क्वार्टाइल्स? Quartiles are actually those values which divide the data set into 4 equal parts. For finding the quartiles, for a simplification we can say if you have a number of data points and if you find their median, तो median क्या करेगा, median will divide the data sets into 2 equal halves. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये median है डेटा का, इसने इसको 2 equal halves में डिवाइड कर दिया, एक अपर लोअर हाफ और इसका ये अपर हाफ. अब आपने जो लोअर हाफ के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका दोबारा से अगर आप मीडियन लें तो वो मीडियन क्या करेगा, दिस मीडियन विल डिवाइड द लोअर हाफ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये और ये. ठीक है, इसी तरह अगर आप अपर पार्ट्स के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका आप मीडियन लें, मीडियन विल डिवाइड दीज ग्रुप्स ऑफ डेटा सेट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो क्या हुआ, 1 क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर. सो क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज विच आर डिवाइडिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू 4 इक्वल क्वार्टर्स. ठीक है, ओके. और जो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो मीडियन से, डेटा सेट के मीडियन से लो लाई करते हैं उनको लोअर क्वार्टाइल, और जो अपर जो होंगे उनको अपर क्वार्टाइल कहा जाता है. ठीक है, ओके. नाउ अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास Q1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे. Q1 हम कहते हैं कि Q1 इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच 25% ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई. ये आपको डेफिनेशन तब समझ आएगी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. और 1 क्वार्टर ऑफ द डेटा सेट लाई. ठीक है, ओके जी. अब देखिए आपके पास टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी है, 12. ठीक है, और 12 का 1 क्वार्टर लें आप लोग, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो आपके पास क्या है, 3 आंसर आएगा. तो ऐसा पॉइंट जिससे बिलो 3 वैल्यूज़ लाई करेंगी वो आपके पास Q1 होगा. ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. अच्छा जी, 69, 70, 70 ये आपके वही असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हुआ है. मीडियन आपका था 70.5, ये भी आपने किया 70.5 आपका मीडियन है. तो हमने कैसे डिफाइन किया कि Q1 क्या होता है जी. हमने कहा कि Q1 आपके पास वो वैल्यू होती है बिलो विच 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन और 1 क्वार्टर ऑफ डेटा सेट्स लाए. तो अब आपके पास मीडियन, आपने करना कैसे है कि मीडियन देख लेना. मीडियन 70.5 है जो कि 70 और 71 के दरमियान लाई कर रहा है, और 70.5 से ऊपर जो नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं आपने. कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके पास नंबर्स हैं. इन 6 का आपने मिड वे लेना है. ठीक है, हाफ लेना है. तो अब आप देखें 6 चूँकि नंबर हैं तो इसका हाफ वे क्या बनेगा, यानी आपने मीडियन फाइंड, हाफ है आपने मीडियन कहा था ना, तो आपने मीडियन फाइंड करना है. तो हाउ विल यू फाइंड द मीडियन. अगेन आपके पास इवन नंबर्स हैं, 2 आपके पास जो मिडिल वैल्यूज़ होंगी, यू विल ऐड द 2 वैल्यूज़ and you will divide it by 2. You will add 70 plus 70 divided by 2, you will get the 70. तो ये आपके पास है Q1. ठीक है,
Q1 आपके पास वो वैल्यू है, वो मीडियन है जिससे बिलो आपका 25% डेटा लाई करेगा। Q1 इज द वैल्यू बिलो विच 1/4 ऑफ द डेटा विल लाई। तो ये आपके पास हो गया जी Q1। इसी तरह आप अगर आप जाएं जी Q3 पे, Q3 आपके पास, अब आपने डिफरेंस जस्ट ये होगा कि Q1 लोअर देन मीडियन था, और Q3 जो आपके पास होगा द वैल्यूज विच आर मेकिंग द डेटा पॉइंट्स विच आर हायर इन नंबर देन द मीडियन। जो आपने ओरिजिनली मीडियन कैलकुलेट किया था, जो आपके पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ये वैल्यू थी 70.5। अब इस 70.5 से अबव जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 ये अबव वैल्यूज़ जो हैं, इन वैल्यूज़ का हाफ वे मिड वे लेना है। मिड वे क्या बनता है इसका, 71 एंड 72, इन दोनों डेटा पॉइंट्स को आप लेंगे, यू विल डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट द Q3। यानी आपके पास इसकी क्या वैल्यू आई है जी, Q3। तो Q3 कहाँ पे लाई करता है, 71 और 72 के दरमियान में, 71.5 है ना, तो इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा। तो Q3 आपके पास वो वैल्यू है, ठीक है, अबव विच 25% ऑफ द वैल्यूज लाई। देखें 72, 73 एंड 300 कितनी वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज हैं। और मैंने आपको कहा था कि 12 का अब 1/4 जब लेते हैं तो 3 वैल्यूज आती हैं। तो अबव विच 25% ऑफ द डेटा लाई। अब आपने Q3 को देख लिया। Q3 इज अ डेटा पॉइंट अबव विच 25% ऑफ द डेटा लाई। अब 25% आपको कैसे समझ आएगी, अब यू कैन से अबव विच 1/4 ऑफ द डेटा लाई। 1/4 ऑफ द डेटा वॉज 3 रीडिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 3 रीडिंग्स जो हैं वो लाई करती हैं अबव Q3। सो आपने Q1 फाइंड आउट किया, Q3 फाइंड आउट किया, और अब आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है। द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये डिफरेंस क्या है, Q3 आपने कितना अभी फाइंड आउट किया है 71.5, और जो Q1 आपने फाइंड आउट किया था दैट वाज 70। सो यू टुक द डिफरेंस ऑफ 2, 71.5 minus 70 and you got 1.5. This is what interquartile range. The difference between Q3 and Q1 is known as interquartile range. फिर आपके पास कुछ और टर्म्स है इससे रिलेटेड, इनर फेंसेस एंड आउटर फेंसेस। जी इनर फेंसेस और आउटर फेंसेस आपके पास एक तरह से ये न्यूमेरिकल बाउंड्रीज होती हैं, न्यूमेरिकल बाउंड्रीज, और ये उन रीजन्स को स्पेसिफाई करती हैं जिन रीजन से बिलो या अबव अगर डेटा पॉइंट्स लाई करेंगे तो वो आउटलायर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब इनर फेंस फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, इंटर क्वार्टाइल रेंज मल्टीप्लाइड बाय 1.5। मैं आपको बाद में रीज़न बताऊंगी वाई 1.5। ये वो वाला 1.5 नहीं है जो आप पे डिफरेंस आया है, ठीक है। आपका यहाँ पे इनर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू भी 1.5 आई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा के लिए 1.5 आए, और इस डेटा के लिए 1.5 आई है, और 1.5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फार्मूला, एंड यू गॉट 2.25। और इसी तरह आपने क्या किया, इस 2.25 को लोअर क्वार्टाइल में से माइनस कर दिया। Q1 से आपने इसको माइनस किया, और अबव क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल से आपने में उसी वैल्यू को आपने प्लस कर दिया है। सो आपके पास एक वैल्यू आई है। तो क्या वैल्यू थी आपके पास, Q1 की क्या वैल्यू थी, Q1 की आपके पास वैल्यू थी जी 70, ठीक है। तो 70 में से आपने अगर माइनस किया है 2.25 को, यू गॉट 67.75, और 71.5 आपके पास जो थी वो Q3 की वैल्यू थी, उसमें आप 2.25 को ऐड करें, यू विल गेट 73.5। नाउ दीज आर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मीन्स कि जो आपकी इनर फेंस है, इनर फेंस की ये 2 बाउंड्रीज हैं। उसकी लोअर लिमिट है 67.75 एंड 73.5। अब देखेंगे आपका जो आउटलायर था इस डेटा में जो कि 300 था, क्या वो इन 2 बाउंड्रीज के दरमियान में लाई करता है, नहीं लाई करता, इन 2 के दरमियान तो नहीं आ सकता ना 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका माइनर आउटलायर है, ठीक है। अगर इनर फेंसेस की बाउंड्रीज के अंदर आपका आउटलायर लाई नहीं कर रहा तो आपका माइनर या माइल्ड आउटलायर है, ठीक है जी। और अभी हम आउटर फेंसेस को देखेंगे। ओके, अच्छा, ये आपके पास है पॉइंट दैट फॉल्स आउटसाइड द
बाउंड्री ऑफ इनर फेंसेस माइनर, जी मैं आपको बता चुकी हूँ ये मैं। और इसके बाद है अ पॉइंट दैट फॉल्स आउटसाइड द आउटर फेंस इज कॉल्ड मेजर आउटलायर। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इनर फेंस के लिए आपने फार्मूला यूज़ कर लिया, फिर अभी हम आउटर फेंस का फार्मूला भी देखेंगे, लेकिन ये डिफरेंस आपने याद करना है कि जो आउटर फेंस की बाउंड्रीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, अगर आपका जो आउटलायर है वो उससे भी बाहर लाई करे तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपका मेजर आउटलायर है। ठीक है, पहले इनर फेंस की बाउंड्रीज हम देख लेते हैं। इनर फेंस की बाउंड्रीज की वैल्यूज हमारे पास आई थी जी 67.75 एंड 73.75, जबकि 300 उससे बहुत दूर कहीं लाया कर रहा था, तो ये आपका आउटलायर था। ये तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया मैथमेटिकली। ओके, आउटर फेंस बाउंड्रीज के लिए क्या फार्मूला है, आपने उसी जो आपका 1.5 वैल्यू आपने ली थी ना इनर फेंस के लिए, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट 4.5। इसका जस्ट 3 टाइम्स हम ले रहे हैं 4.5, बाकी वही फार्मूला है Q1 माइनस 4.5 एंड Q3 प्लस 4.5। Q1 आपका 70 था, उसमें से आपने माइनस 4.5 आपने माइनस किया और यहाँ पे आपने उसी को प्लस किया, सो यू गॉट 65.5। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है 76। तो आउटर फेंस की लिमिट्स आपके पास क्या आ गई हैं, बाउंड्री 65.5 लोअर है और 76 जो है वो हायर लिमिट है। मतलब क्या इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में आपका 300 लाई करता है, नहीं करता, तो ये आपका कौन सा वाला आउटलायर होगा, मेजर आउटलायर। सो आपका जो आउटलायर है दिस इज़ नॉट माइनर आउटलायर, दिस इज़ नाउ मेजर आउटलायर। ओके ओके, इसके बाद आपने क्या करना है क्लास के, डज 300 लाई इन दीज बाउंड्रीज, आउटर फेंस की इन बाउंड्रीज में 300 लाई कर रहा था, एंड यू नो दैट बिटवीन 65.5 एंड 76 300 कैन नॉट लाई, सो ये आपके पास जो होगा आउटलायर होगा। ठीक है, और मेजर आउटलायर है बिकॉज दिस डज नॉट लाई इन द रीजन इन द बाउंड्रीज ऑफ what outer fence. Now another point related to the outlier is you will find the mean of whole data इंक्लूडिंग आउटलायर। आपके पास ये जितने भी नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 69 टू 300, ये 12 पॉइंट्स आपके थे, तो आप क्या करेंगे, विल टेक द मीन ऑफ दीज वैल्यूज़। आप जानते हैं कैसे लेंगे, विल सम अप ऑल द वैल्यूज़ एंड यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ यू विल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप डेटा में आउटलायर को इंक्लूड करेंगे यू विल गेट 89.67, यानी एवरेज टेम्परेचर जो रूम में पड़ी हुई चीज़ों का है वो कितना आया है, 89.67। और अगर आप उसको आउटलायर को निकाल दें और उसके बगैर आप लोग अगर रीडिंग लें तो आपके पास आती है 70, मीन इसका फाइंड आउट करें तो आपके पास 70.55 आता है। तो ये तो बहुत डिफरेंस है, 89.67 अगर रूम का टेम्परेचर एवरेज आता है और दूसरी तरफ आपके पास 70.55 आ रहा है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अब ये इसके बाद वाला पॉइंट ये होता है कि वी हैव टू फाइंड द रीज़न ऑफ डिफरेंस। अब क्या ऐसा रीज़न है कि बाकी सारी चीज़ें जो रूम में हैं उन सब का टेम्परेचर जो है वो 70 की रेंज में लाई कर रहा है, तो ये 300 का फिगर कहाँ से आ गया। तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर ह्यूमन एरर की वजह से ओवन ऑन रह जाता है और उसका टेम्परेचर ले लिया जाता है तब वो 300, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवन का अपना टेम्परेचर 300 नहीं था, ये तो उसके ऑन रहने की वजह से और किसी टेम्परेचर पे सेट होने की वजह से उसका टेम्परेचर 300 आया है। तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब रिकॉर्डिंग एरर कह सकते हैं, ह्यूमन एरर कह सकते हैं। तो जो आउटलायर ह्यूमन एरर की वजह से होंगे उनको हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू मिट देम, आपने उनको डेटा से निकाल देना, अदरवाइज आपके डेटा आपका इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेटा कैसे इफेक्ट हुआ कि आपके डेटा का मीन जो है वो एकदम से चेंज हो गया, कि वो एक बिल्कुल रॉन्ग रीडिंग दे रहा है आउटलायर की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, सो वी कैन से कि व्हेन वी फाइंड द मीन विदाउट आउटलायर दिस इज 70.5। wrong conclusion, presence of outlier is leading to a wrong conclusion कि temperature इतना है average temperature। okay, now what will you do once you have found the cause आपने फाइंड आउट कर ली कि ह्यूमन एरर था। ठीक है, तो एरर अगर मेजरमेंट की वजह से ह्यूमन एरर है तो आपने आउटलायर को डेटा से निकाल देना है, और अगर जो उसका कॉज है वो एरर नहीं है, मतलब मेजरमेंट में एरर नहीं है बल्कि इट रिवील सम न्यू इन्फॉर्मेशन, डेटा में उसकी प्रेजेंस जो है उसके जेन्युइन रीज़न की वजह से है, मतलब वो एक्यूरेटली लाई करती है वहाँ पे, तो ऐसे में आपको वो उसमें से आउटलायर को डेटा से ओमिट नहीं करना, यू विल हैव टू रिटेन द आउटलायर इन द डेटा। सो दिस वाज अबाउट